Hello, yeah, are you there? Yes, yes. Yeah, okay, so let's start. Okay, so Can you hear previously, me? yeah, I can hear you. Hello? Okay. Yeah, you can hear me, right? Yes, yes, Okay, fine. So let's yes. start. Okay, so in previous session, we had completed like material management aspect. Okay, so what is the process in material management is there? Okay, and there were a few questions which we addressed, like what is source code? Okay, and what are the procurement processes we had learned? Okay, similar way, we are going to learn about the finance and controlling aspects. Okay, why these two modules we have chosen? Because these two modules are closely integrated with SAP HCM. Okay, so we need to get to know what is this module is all about, what the structure of that module is. Okay, so basically we had learned about sales and distribution structure and module. Okay, then we had learned about what is material management aspects and module. Now we are learning about finance and controlling aspects. Okay, now after this session, okay, I will be taking your one tricks and what look and feel of the screen of SAP. Okay, then tricks and tips of this SAP screen. What is a landscape of SAP? Okay, what are the different kinds of landscapes? So I will showcase you various models or various clients. We can say what are the landscapes. Okay, so you will come to know how the landscapes are mapped, business to business, how it differs. Okay, and in the same, I will also explain you if you want, like PS module. What are the structure of PS module? What is the structure of we can say the other modules like PM is there, right? Customer management is there, Okay. Yeah. production planning is there. So all these modules are there. What is the structure? So I can give you. Yeah, we will not take the separate session because in our whatever the scope is there, we had only few modules like material management and finance model. Okay, if you want that also, I can provide you. Okay, now moving to the next, Okay. I will just share my screen. So today I think I would be taking a much times of your okay because I need to also rush up to the office. Okay, so we will complete as per what Okay. we have. Okay, Okay. yeah, again for our understand, yeah, for our this one is there. Okay, so what we can do here, we can cover up in the sessions in the we can say weekends also. Okay, so whatever as we time we Okay. get, okay, in the daily morning sessions, we will complete that. Okay, and after that in the Okay. whatever we need to cover up, we can cover up in the this weekends are there. Okay, Okay. okay, can you see my screen? Yes. Okay, so we are going to learn about what is finance in SAP. Okay, when it comes finance, what in your mind comes up first thing? What in your mind the first thing comes up? Money management. Hello. Yeah, yes, Money tell me. management. मनी मैनेजमेंट सो पहला तो आपके मन में यही आता है कि फिनेंस मतलब पैसा लाइक वट एवर द डीलिंग्स ऑफ Hmm. द कंपनीज मतलब वो लोग ने कितना इन्वेस्ट किया कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो सब माइंड में आता है राइट कि लाइक हमें टैक्स पे करना है ओके Yes. ओके अंडरस्टूड सो ये सब होता है राइट द सिमिलर वे सेम मॉड्यूल मतलब जो भी हम लोग फिनेंस एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक जो भी हमारा फिनेंशियल व्हाट इज द इम्पैक्ट इज देयर इन आर कंपनी ओके जो भी अकाउंटिंग्स होता है अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसीवेबल जो भी चीज पैसा आता है पैसा जाता है कैसे आता है कैसे जाता है लाइक ऑल द मोड्स दैट सेकेंडली उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ है राइट उसका हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है
whatever is there, what कितना एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट है, ट्राई बैलेंस है, बैलेंस शीट है, देन तुम्हारा P&L स्टेटमेंट है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये सब चीजें हम लोग निकाल सकते हैं वाया दिस मॉड्यूल, और हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन डू आवर बिजनेस इन द नियरर फ्यूचर। Okay, whether we have to continue with that, we can take financial decisions via the statistics, whatever is there, ट्राई बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो भी हमारा बैलेंस शीट वगैरह निकलता है, अगर बैलेंस शीट अच्छा है तो हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। जो भी बिजनेस डिसीजंस है, लाइक हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है, हमारा बिजनेस, या फिर हमें एक्सपांड नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक डायमेंशन में एक्सपांड करना है, कोई पर्टिकुलर एरिया में एक्सपांड करना है, वट एवर द एनालिसिस आर देयर, ओके, या हमें फिनेंस की जरूरत है कि नहीं, लाइक फ्रॉम आउटसाइड कोई इन्वेस्टर की जरूरत है कि नहीं, राइट, सो दैट वी कैन टेक एक्सपांड आवर बिजनेस, ओके, और वी कैन मेक आवर बैलेंसेस क्लोज एंड ऑल दिस थिंग्स, वी कैन मैनेज आवर फिनेंसेस, ओके। तो उसके लिए हमने ये फिनेंस मॉडल इन्वेंट किया है वो Yes. लोग ने, ओके, और उसी के अंदर वी कैन से दे कैन डू ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके। Objective: at the end of this module, you will able to know, describe what is financial accounting and controlling process in SAP. Okay, describe the FICO's sub processes. List the difference between the FI and CO processes. Identify the integration point between FICO and other SAP modules, and recognize the different reports used in FICO processes. Okay. Next is there the following topics will be discussed in this module: overview of finance in SAP. I think there is some background noise. Can you just mute yourself? Yeah, thank you so much. Next is finance, accounting, and controlling process. Okay, then finance, accounting, and controlling reports. Okay, so these are all topics we will cover up. Moving to the next, finance and accounting. What is finance and accounting management? Finance and accounting management is the process of recording financial transaction, summarizing transaction details, publishing financial information of proprietors, investors, and government agencies. Like proprietor मतलब उसने कितना इन्वेस्ट वगैरह किया, इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट वगैरह किया, प्रोप्राइटर को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को कितना टैक्स गया, वैट गया, वट एवर इज दैट, ओके, विथहोल्डिंग टैक्सेस आर देयर, टीडीएस, टीसीएस, जो भी, ओके। तो वो पूरा हम लोग को पब्लिश करते हैं फिनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट में, पूरा पब्लिश होता है, मैनेज होता है, अकाउंटिंग होता है, ओके। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ balance sheet and profit and loss statement help in making decision in an organization, okay. In SAP, finance includes FI, which stand for financial and accounting, and controlling. CO stands for controlling, known as management accounting, okay. Next is, what is financial accounting in SAP? पहले हम लोग ने सीखा what is finance and accounting. Financial and accounting क्या होता है? अभी what is financial accounting? ओके, पहले दोनों का डिफरेंस जाना, अभी एक साथ दोनों कैसे होते हैं। The FI module in SAP used to support the finance and statutories, okay, reporting of legal entities. It reports the financial position and activity of an organization to the statutory bodies and external parties. मतलब हम लोग कोप कर सकते हैं, आज हम लोग लाइक वी कैन से शेयर बाजार इतने करोड़ का टर्नओवर की कंपनी है ये, लाइक वी कैन कॉल इट एज लाइक टाटा इज देयर, इतने करोड़ का टर्नओवर है इन लोगों का, लाइक वट एवर द रिलायंस इज देयर, राइट। सो वी नो डिफरेंट कंपनीज विद देयर नेटवर्थ या फिर टर्नओवर, ओके। तो हाउ दिस इज कैलकुलेटेड एंड हाउ दिस इज मैनेज्ड बाय द फाइनेंशियल एजेंसीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, उसके लिए कहीं ना कहीं तो कुछ तो डेटाबेस लगेगा उनका, राइट। So that database we are creating in SAP. Okay. Likewise, other modules भी उनके रहेंगे। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, खुद के सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट, टू मैनेज ऑल दिस रिपोर्टिंग्स एंड ऑल, ओके। सो लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं कि ये कंपनी का इतना टर्नओवर है, इतने करोड़ की ये कंपनी है, लाइक ऑल दिस थिंग्स हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इतने प्रॉफिट कमा रही है, ओके। तो वो सब हम लोग देख सकते हैं वहां सम डेटाबेस, उन्होंने कुछ तो एक डेटाबेस बनाया होगा, वहां पे कुछ वो लोग एक मतलब कुछ मेंटेन करते होंगे, राइट, वट एवर देयर बैलेंसेस एंड ट्राई बैलेंसेस और जो भी है, तो उससे हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिलती है और उनको भी मिलती है, ओके। तो सिमिलरली सेम मॉड्यूल अपना एसएपी है, उसी के अंदर ये फिनेंस इसीलिए बनाया गया है, ओके।
Financial and statutory plays a very important role in the collection and dissemination of information. It is responsible for overall integrity of the financial statement such as balance sheet and income statement. ओके, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड, नेहा? No, ओके, सो आई थिंक आप कौन मतलब व्हाट यू हैड डन द बेसिक एजुकेशन, कैन यू जस्ट टेल मी अगेन? engineering, ओके, इंजीनियरिंग में कौन सा ये स्ट्रीम? electronics and telecommunication. ओके फाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको लिस्ट नॉलेज रहेगा, नो इशू। ओके, Hmm. बिकॉज सी, तो आपको है ना ये सब कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एसेट क्या होता है, जब भी आप एसडी अभी सीख रहे हो राइट, तो आपको ये सब मॉडल्स सीखने पड़ेंगे। या आपको बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज इनकम, ओके, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। ये प्रॉपरली अगर इसके अंदर आप ये हो तो आपका अकाउंटिंग अच्छा है। अकाउंटिंग अच्छा है तो आपको सेल्स में भी बहुत अच्छी हेल्प होगी, नॉट इन द फिनेंस बट सेल्स में भी अच्छी हेल्प होगी। ओके, रादर देन आपने शायद अभी तक सीखा भी होगा ये मॉडल्स। ओके, बट अगेन एज अ होमवर्क यू कैन जस्ट लर्न अबाउट दिस, what is asset, what is liability, what is credit, what is debit, what is expense, what is income. Okay, and more than that, adding to that, you can also learn about what are the golden rules of accounting. ओके, मैं आपको शीट भी दूंगा एक, मेरा एक ये भी है अपना डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आपको देता हूँ। यू कैन जस्ट रीड दैट डॉक्यूमेंट, ओके, एज अ होमवर्क, एंड यू कैन जस्ट नो अबाउट व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, रियल बैलेंस क्या होता है, ओके, और फिर और गोल्डन रूल्स क्या है, राइट? तो वो सब चीजें आप जान सकते हैं। ओके, कुछ भी डाउट क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी। ओके नेहा? Yes. ओके, ओके, Yeah. ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एसएपी finance. Okay, what are the benefits of SAP Finance? The benefits of SAP Finance are simplified and automated finance processes, standardized process and data, effective analytical capability, effective management accountability and performance measures, effective contribution to organization profitability by managing accountability and providing performance measurement high insights, centralized governance with consistent use of SAP organizational object and a strong controlled environment to ensure process sustainability. Okay, सो एक एक चीज आप जान लो, व्हाई दिस, हम लोग ये क्यों एसएपी मतलब क्यों ले रहे हैं, राइट? सिमिलरली यही जानने के लिए ना कि लाइक मेरे कंपनी कितना प्रॉफिट में, कितना लॉस है, कौन से, अगर प्रॉफिट में तो कौन से डायमेंशन में, लॉस में तो कौन सा डायमेंशन। आप सेल्स पार्ट ले लो, एमएम पार्ट ले लो, प्रोक्योरमेंट पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, राइट? कोई भी मॉड्यूल ले लो, अल्टीमेटली सब कुछ कहाँ पे जाना है, फिनेंस में ही जाना है। अल्टीमेटली सबका Yes. सबका मोटिव क्या है, टू आमदनी अपना मेंटेन करना, राइट? टू एनीबॉडी जो भी अपना फिनेंशियल्स मेंटेन कर रहा है, वेदर इट इज एम्प्लॉय, सीईओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन है, इज लुकिंग आफ्टर द फिनेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, राइट? ओके, तो जो भी है, तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फिनेंस है। तो आप समझ लो कि ये मॉड्यूल सबसे बड़ा एक्स फैक्टर मॉड्यूल है जैसे। अगर इस यही अगर वी कैन से दिस मॉड्यूल इज वेरी वीक, और इसका इतना ये नहीं रहता, कैपेबिलिटी नहीं रहता, तो एसएपी नहीं चलता इतने सालों तक। बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूल एसएपी इज रनिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूल, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं, इसके एनालिटिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कैपेबिलिटीज जो है, ओके, उसी से ही एसएपी इतना डेवलप हुआ है। क्योंकि बाकी सब मॉड्यूल्स आप बोल सकते हो, बाकी सब मॉड्यूल्स है, नो इश्यू, जरूरत है इस मॉड्यूल्स की, बट दिस इज अ मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वी कैन से। ओके, Okay. नेक्स्ट इज एफआई मास्टर डेटा। मास्टर डेटा क्या है उसके अंदर? सबसे पहला क्या है? The SAP stores processes information in form of data, which is categorized into three data: master data, transaction data, organization data. अभी आपको जानना है तीन मेजर इंपॉर्टेंस।
मास्टर डेटा यानी कि प्री रिक्विजिट। ट्रांजैक्शन डेटा आई थिंक हमने पहले भी कवर्ड अप किया है, राइट? हेलो। यस यस। ये हम लोग ने पहले भी कवर्ड अप किया है, ट्रांजैक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्या है। हाँ। और रुको मैं आपको वापस से वन मोर टाइम वी कैन रिपीट। व्हाट आर द डेटाज इन एसएपी? सबसे पहला होता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के बारे में तो आपको पता चला, प्री रिक्विजिट ऑफ एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब वो क्या है, लाइक हम लोग कस्टमर बना रहे, वेंडर बना रहे, या फिर मटेरियल बना रहे, तो ये प्री रिक्विजिट है। एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन वहां पे कुछ इंपैक्ट नहीं है, बट एक ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दीज आर द प्री रिक्विजिट विच आर सेंट्रली स्टोर्ड। ओके। यस नेक्स्ट है अपना ट्रांजैक्शन डाटा। ट्रांजैक्शन डेटा मतलब एक्चुअली वहां पे डेटा हम लोग पंच कर, लाइक सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, वट एवर, प्रोडक्शन ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर्स, राइट? पीएम का मेंटेनेंस ऑर्डर बोल सकते हैं हम लोग, राइट? पीएम मॉड्यूल में, प्लांट मेंटेनेंस में, राइट? तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, राइट, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। वही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड, जिसके अंदर एक्चुअली में पता चल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहा है पर्टिकुलर मॉड्यूल। प्रोडक्शन ऑर्डर से हमें पता चलेगा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। मेंटेनेंस ऑर्डर से पता चलेगा कि बार बार कितनी बार मेंटेनेंस के लिए मेरा एसेट गया। परचेस ऑर्डर से पता चल रहा है कितना एक्सपेंस हुआ मेरा। सेल्स मॉड्यूल से पता चल रहा है कितना रेवेन्यू जनरेट होगा या होगा, हुआ है या होगा, वॉट एवर इज देयर। ओके, तो दीज आर द मेन ट्रांजेक्शन टू जज एनी मॉड्यूल। ओके, और जहां पे एक्चुअल हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, मास्टर डेटा हो गया, ट्रांजेक्शन डेटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ऑर्गेनाइजेशन यस डेटा में क्या आता है, लाइक मेरा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी कोड क्या है, मेरा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, राइट? तो ये जो एक यस स्ट्रक्चर रहता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल और एसएपी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसके कितने प्लांट्स है, कितने स्टोरेज लोकेशन है, कितने सेल्स ऑफिस है, राइट? कितने प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लांट्स है, कितने मेंटेनेंस प्लांट्स है, राइट? सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। एंड दैट डेटा जहां पे हम लोग एक फॉर्म में मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ओके, तो जब भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे और रफ बनाएंगे। सिस्टम में बनाने से पहले रफ बनाएंगे, राइट? कि इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्लाइंट क्या है, इनका कंपनीज कितना है, इसमें कितने परचेस ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने हैं, डिवीजन कितने हैं, राइट? परचेसिंग ग्रुप कितने हैं, मेंटेनेंस प्लांट कितने हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स कितने हैं, राइट? सो सेल्स ऑफिस कितने हैं, ओके, स्टोरेज लोकेशन कितने हैं। तो ये सब डेटा हम लोग जो कवर्ड अप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन डाटा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, राइट? नहीं? यस नेक्स्ट होता है अपना कॉन्फ़िगरेशन डेटा। सो कॉन्फ़िगरेशन डेटा यानी क्या क्या रहता है, कि जो डेटा लाइक केडीएस अपना केडीएस बोल सकते हैं, कोडिंग मास बोल सकते हैं उसको। की डेटा स्ट्रक्चर, केडीएस का फुल फॉर्म होता है की डेटा स्ट्रक्चर। की डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? ओके, सो की डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कि भाई हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लाइक एचडी में, आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग बैकएंड कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, लाइक हम लोग आइटम कैटेगरीज बनाते हैं, ओके, या तो फिर हम शेड्यूल लाइन कैटेगरीज बनाते हैं, राइट? या फिर हम लोग लाइक कोई सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, सेल्स ऑर्डर टाइप बना रहे हैं, राइट? लाइक मैं सेल्स करना चाहता हूँ, एक ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, तो उसका एक ऑर्डर टाइप बनाना पड़ेगा हमें, राइट? या फिर हम लोग मटेरियल टाइप्स बनाते हैं, ओके, कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि मैंने जो मेरे डोमेस्टिक कस्टमर है उसके लिए कस्टमर ग्रुप बनाया है, अकाउंट ग्रुप बनाया है। एक्सपोर्ट के कस्टमर से उसके लिए अकाउंट ग्रुप बनाया है। मेरे दो बिजनेसेस है, राइट? एक कार का बिजनेस है, एक हाउसिंग का बिजनेस है, तो दोनों के लिए अकाउंट ग्रुप बनाया, कस्टमर के लिए या वेंडर्स के लिए, जो भी मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो वो सब चीजों के लिए, और उसकी कुछ नंबर रेंज भी होगी। लाइक फॉर एन एग्जांपल कि मैंने कोई परचेस ऑर्डर बनाया, तो परचेस ऑर्डर की एक नंबर रेंज होगी, सेल ऑर्डर की एक नंबर रेंज होगी कि ये पहली सेल ऑर्डर है, सेकंड सेल ऑर्डर है, थर्ड सेल ऑर्डर, राइट? सो वो जो कॉन्फ़िगरेशन और वो सब कितनी नंबर रेंज क्या होगी, ऑर्डर टाइप क्या है,
राइट। आइटम कैटेगरी क्या है, जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए जो डेटा लगता है वो भी हम बिजनेस से लेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल डेटा। और जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो बिजनेस स्पेसिफिक करेंगे। ओके, तो टाटा के लिए टाटा का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जो अपना रिलायंस है, रिलायंस कंपनी, उसके लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो भी कंपनीज है, तो उनका एक बिजनेस स्पेसिफिक और एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ऑब्वियसली वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा ऑर्गेनाइजेशन को भी बताना पड़ेगा, और नहीं भी बताया तो अभी हमें उनसे लेना पड़ेगा, लाइक एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारे सिस्टम में ये सब चीजें बना रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डेटा। अंडरस्टूड? यस, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन आप समझ रहे हो, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? आप समझ में आ रहा है कि क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? यस। और क्या होता है, व्हाट यू कैन से इन योर वर्ड्स, आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन डेटा इज लाइक जो एफआई और सेल्स में जो कॉन्फ़िगरेशन करके लाइक हमने जो सेल्स किया, उसका डेटा हम लोग एफआई से निकालेंगे, राइट? नो, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि बैकएंड, मतलब फॉर एन एग्जांपल कि मैं सेल्स करना चाहता हूँ, राइट? हम्म, तो मैं एक सेल ऑर्डर बनाऊंगा, राइट? ये हमारा फ्रंट हम्म, एंड हो गया, यूजर सेल ऑर्डर बना रहा है। लेकिन जो सेल ऑर्डर बना रहे हो, उसके लिए जो ऑर्डर टाइप बना है, वो बैकएंड में आपको बनाना पड़ेगा ना। ओके। हाँ, उसके ऑर्डर अंदर आप, टाइप, ऑर्डर रीजन। राइट, उसके अंदर आप क्या डालोगे, कस्टमर डालोगे। लेकिन कस्टमर का कुछ तो अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो उसका बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। सेकेंडली, मटेरियल हाँ, आपने बनाया, तो वो मटेरियल रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, क्या है, उसका मटेरियल टाइप क्या है, और मटेरियल टाइप हमें बैकएंड में बनाना पड़ेगा, हाँ। राइट? फिर वो मटेरियल का आइटम क्या है, उसका आइटम कैटेगरी, राइट, कि वो ऑर्डर है या डिलीवरी रिलेटेड है या क्या है, राइट, या थर्ड पार्टी है, तो उसका एक रूट बनाना पड़ेगा, रूट को डिसाइड करता है आइटम कैटेगरी। जो फ्रंट एंड में यूजर होते हैं, बट हमें बैक एंड में वो चीज करनी पड़ेगी, मैपिंग। ओके, आई थिंक यू कैन गो ऑन म्यूट, Yeah. यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? ओके, सो लाइक वो जो डेटा हम लोग बनाते हैं, उसके लिए भी फॉर एन एग्जांपल मैं जाके थाउजेंड्स ऑफ आइटम कैटेगरी नहीं बना सकता, ऑर्डर टाइप नहीं बना सकता इन द बैक एंड, रफली नहीं बना सकता कोई भी किसी के सिस्टम में। हाँ, मैं अगर डेमो में बना रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ, तो बनाऊंगा, नो इशू। बट किसी के सिस्टम में जाके इतना सब में कचरा या वेस्टेज नहीं जमा करूंगा, राइट? तो फॉर प्रैक्टिसिंग और इसके लिए, तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एक बनाते हैं कि इतने ऑर्डर टाइप्स होंगे, उसके नंबर रेंज ये रहेंगे, आइटम कैटेगरी होगी, इसका नंबर रेंज, प्राइसिंग प्रोसीजर की कंडीशन टाइप्स क्या होगी, क्या नहीं होगी। ओके, बैकएंड में जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसको एक कॉन्फ़िगरेशन डेटा हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट अ बिजनेस रिलेटेड एक्टिवेशन फॉर टू रन अ बिजनेस, मतलब एक एक्टिवेशन करते हैं। ओके, लाइक फॉर एन एग्जांपल, पहले हमको बोला जाता है कि भाई तुम्हारे इतने मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, एच डी, एफ आई, एम एम और पीपी। ओके, लाइक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग और मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, ये 4 मॉड्यूल आपके। तो आप उस 4 मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मतलब आप बिजनेस एक्टिवेशन करोगे, ताकि वो लोग उसी मॉड्यूल्स में ऑर्डर टाइप बना पाए उनके बिजनेस स्पेसिफिक। ओके, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एसएपी ने क्या क्या एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है कि ओआर इज ऑर्डर टाइप, स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप, उसको यूज करो। ओके, बट मुझे ओआर नहीं चाहिए, जेड ओआर चाहिए, मुझे बिजनेस स्पेसिफिक चाहिए, उसके नाम भी बिजनेस वाले चाहिए, तो मैं जेड बनाऊंगा, कस्टम बनाऊंगा, और स्टैंडर्ड को नहीं हिलाऊंगा। क्यों? बिकॉज ओआर जो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है, वो मुझे हमेशा रेफरेंस के लिए रहेगी, लाइफ टाइम रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 5 ऑर्डर टाइप बना रहा हूँ, एक सेल ऑर्डर बना रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, क्रेडिट मेमो बना रहा हूँ, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, ऐसा बना रहा हूँ, ऑर्डर टाइप्स बना रहा हूँ। ओके, इन द कॉन्फ़िगरेशन इसका रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, एसएपी ने जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ओ आर, सी आर, डी आर, जो ऑर्डर टाइप्स दिए, उसको कॉपी करके मैं नया बना रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आज जो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है, वैसे 10 ऑर्डर टाइप बन सकती है इन द नियर फ्यूचर। अगर मैं स्टैंडर्ड को ही यूज कर लिया, तो मेरे पास डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया ही कम रहता है, और स्टैंडर्ड का जो एसएपी का जो रेफरेंस है वो ब्रेक हो जाता है।
क्योंकि मैं उस ओआर में जो स्टैंडर्ड है उसमें भी तो कुछ चेंजेस करूंगा ना, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली बात तो एक बिजनेस एक्टिवेशन रहता है, कि मतलब बिजनेस स्पेसिफिक एक्टिवेशन रहता है जिससे हम लोग बिजनेस रन कर सकते। अंडरस्टूड? हेलो। यस यस। ना व्हाट इज कस्टमाइजेशन? कस्टमाइजेशन यानी कि कोड कस्टमाइजेशन। अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम लोग बैकएंड कोड कोई चेंज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। जहां पे स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप ओ आर है, ओके, लाइक फॉर एन एग्जांपल ओ आर है स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप, उसको कॉपी करके मैंने जेड ओ आर बनाया, ओके, तो उसमें कोड चेंज नहीं हुआ, जो डेटा है वो चेंज हो गया, तो उसको इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन डेटा है वो चेंज हो गया। ओके। नाउ व्हाट इज कस्टमाइजेशन? कस्टमाइजेशन मतलब क्या? बैकएंड कोड चेंज होना। ओके। जो कोडर लोग करते हैं, लाइक एबैप, ओके, जो हमारे में एबैपर्स रहते हैं, राइट, तो वो लोग कोड चेंज करते हैं, तो बैकएंड में जहां जहां कोड चेंज होती है वहां पे उनको वो करना पड़ता है, जो भी कस्टमाइजेशन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन। मतलब कस्टम स्क्रीन डेवलप करना, कस्टम फील्ड्स डेवलप करना, राइट, कस्टम का कोई प्रोसेस डेवलप करना, राइट, और लाइक रिजल्ट्स चेंज करना, ओके, उसको बोला जाता है वराइसर। ओके। नाउ वराइसर क्या क्या रहता है? कस्टमाइजेशन वराइसर रहता है। डब्ल्यू फॉर्म्स फॉर वर्कफ्लो, ओके, आर स्टैंड फॉर रिपोर्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस, एफ स्टैंड फॉर फॉर्म्स, सी सी स्टैंड फॉर कन्वर्जन, और लास्ट ई स्टैंड फॉर एनहेंसमेंट। ओके, ये कस्टमाइजेशन होता है हमारा। कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट मतलब फॉर एन एग्जांपल वर्कफ्लो यानी क्या? मतलब अप्रूवल मैट्रिक्स, लाइक पहले आप अप्रूव करोगे, मैं अप्रूव करोगे, बट मुझे कस्टम चाहिए, तो मुझे वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में क्या है? पीपी मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल में रिलीज स्ट्रेटजी, हमारे में क्या है? स्टेटस प्रोफाइल। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेटस प्रोफाइल है, जहां पे हम लोग जाके स्टेटस चेंज करेंगे कि भाई मैंने फर्स्ट अप्रूवल ने अप्रूव किया कि नहीं, सेकंड अप्रूवल ने सेल ऑर्डर अप्रूव किया कि नहीं। तो दिस इज अप्रूवल मैट्रिक्स। उसके लिए अगर कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे एसएबी का स्टैंडर्ड यूज नहीं करना है, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्कफ्लोज बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। मतलब क्या? कि मुझे मेरे बिजनेस स्पेसिफिक एक रिपोर्ट चाहिए। एसएपी ने तो स्टैंडर्ड में बहुत रिपोर्ट्स दी है, आपने देखा, VA05, VA25, बट मुझे कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए। इंक्वायरी, कोटेशन, सेल ऑर्डर की कंबाइंड रिपोर्ट, सेल ऑर्डर, डिलीवरी और बिलिंग की कंबाइंड रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट बोलते हैं कस्टमाइजेशन। तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे। इंटरफेस यानी क्या? इंटरफेस यानी कि लाइक एक एसएपी जैसा कोई दूसरा मॉड्यूल है या दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसके साथ मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब वहां से डेटा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से डेटा वहां पे जाना चाहिए, तो उसको उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। कन्वर्जन यानी क्या? मतलब मास डेटा अपलोड, लाइक जो मैं डेटा सिस्टम में डाल रहा हूँ वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए। मतलब मैं एक्सेल अपलोड करूंगा, मेरे 1000 कस्टमर अपलोड हो गए। मैं वेंडर अपलोड करूंगा, मेरे 1000 वेंडर्स अपलोड हो गए। मैं सेल ऑर्डर डालूंगा, 1000 सेल ऑर्डर डालूंगा, ऑटोमेटिक 1000, मुझे एज अ रिजल्ट मुझे 1000 सेल ऑर्डर के नंबर्स मिलेंगे, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन। एनहेंसमेंट यानी क्या? एनहेंसमेंट यानी कि जो भी एनहेंसमेंट करते हैं, लाइक एक कस्टम फील्ड डेवलप किया, एक कस्टम स्क्रीन डेवलप की, राइट, या कुछ तो वैलिडेशन दे दिया, राइट, इसके बिना ये लाइक फॉर एन एग्जांपल एक मैंडेटरी फील्ड डाल दी मैंने, राइट, एक मैंडेटरी कर दी, मतलब इसके बिना ये ट्रांजैक्शन सेव ही नहीं हो सकता। मतलब वन थिंग लाइक पेमेंट टर्म्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पेमेंट टर्म्स मैंने मैंडेटरी करना चाहा, वाया कोडिंग, ओके, तो उसको बोला जाता है वैलिडेशन, या जो भी चीज है उसको बोला जाता है एनहेंसमेंट। फॉर्म्स यानी क्या? जो भी हमारा डिलीवरी चालान है, इनवॉइस है, जो मेरे को मेरे बिजनेस स्पेसिफिक करना है, मेरा खुद का लोगो, मेरा खुद का फॉर्मेट, राइट, या पीओ का जो भी हमारा जीआरएन होता है, उसका उसका जो लेआउट रहता है, राइट, तो उसको बोला जाता है फॉर्म्स, जो डेवलपर्स लोग डेवलप करते हैं और हम यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, राइट नेहा? हेलो।
हेलो। Yes. ओके, सो फॉर Yes. Yes. एज अ होमवर्क पर्पस आप ये बाइसेप समझना है आपको। Okay. ये बाइसेप क्या होता है मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगेन आपको गूगल भी थोड़ा सा सर्च करो वर्क फ्लो क्या रहता है। O- तो वर्क फ्लो मैंने आपको बताया कि लाइक अप्रूवल मैकेनिज्म, हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए जहां पे नहीं एसएपी ने नहीं दिया है बट मुझे चाहिए, या मुझे मेरे बिजनेस स्पेसिफिक चाहिए, राइट। तो मेरे बिजनेस स्पेसिफिक चाहिए तो मैं वर्क फ्लो बनाऊंगा कस्टमाइजेशन, तो उसको भी कस्टमाइजेशन बोला जाता है। रिपोर्ट्स होते हैं, इंटरफेसेस होता है, कन्वर्जन होता है, एनहेंसमेंट एंड फॉर्म। ओके, ये बाहर करो, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज बाइसेप। ओके, Okay. बाइसेप एसएपी में कस्टमाइजेशन करते हैं, जहां जहां हम लोग कुछ भी करते हैं कस्टमाइजेशन, तो ये पांचों के अलावा, ये सिक्स, और ये सिक्स के अलावा कुछ नहीं होगा, ये सिक्स में से ही एक होगा, राइट। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड अप हो गया। अभी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन डेटा हो गया। ओके, अब हमारा आता है कटोर डेटा, अपलोड डाटा और कटोर डाटा। अपलोड डाटा यानी क्या, मतलब जो, मतलब हम लोग अपलोड करने वाले, राइट। लाइक मेरे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, मुझे मास अपलोड करना है, तो अपलोड डेटा हो गया। कटोर डेटा यानी क्या, कटोर डेटा यानी कि जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं ऐसे, राइट, तो वहां पे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिक डेटा मैंने डाल दिया। ओके, दैट कैन बी ट्रांजैक्शन डेटा, अपलोड डेटा बोल सकता हूँ मैं। ओके, सो वो डेटा हिस्टोरिकल लीगेसी डेटा हम लोग बोलते हैं उसको, लीगेसी डेटा। ये सब कुछ अलग है, इसीलिए मैं अलग डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लीगेसी डेटा यानी कि मेरा जो लीगेसी सिस्टम है अभी, लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरा पिछला लीगेसी सिस्टम क्या था, एक्सेल था, मैं एक्सेल में मेंटेन करता था, राइट, या मेरा टैली था, या मेरा फारविजन था, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, राइट। तो उसमें से डेटा मैं ऐसे भी मैं डाल रहा हूँ, या हिस्टोरिक डेटा जहां पे भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो उसको बोला जाएगा लीगेसी डाटा। ओके, ना व्हाट इज कटओवर डाटा। कटओवर डेटा यानी कि क्या, मैंने लीगेसी डेटा डाल दिया, मेरा मास्टर डेटा सिस्टम में बना दिया। ओके, जो भी मुझे लगने वाला है, मेरे थाउजेंड कस्टमर है, थाउजेंड कस्टमर डाल दिए। लीगेसी डेटा मतलब मेरे थाउजेंड सेल ऑर्डर थे, थाउजेंड परचेस ऑर्डर थे, तो वो सब मैंने सिस्टम में डाल दिए। अब मुझे गो लाइव करना है, बराबर। लेकिन जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब मैं क्या करूंगा, जब मैं अपलोड कर रहा हूँ लीगेसी डेटा में अपलोड कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा अभी तक का हिस्टोरिक डेटा था 1000, बराबर। मेरा गो लाइव है 1 तारीख को, 1 जैन। आज मैं कौन सा हूँ, 19 तारीख को हूँ, राइट। 19 को मैंने, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, 25 को मैंने लीगेसी डेटा अपलोड किया। ओके, लीगेसी डेटा अपलोड किया, फिर बाद में बिजनेस वेरीफाई करेगा वो डेटा प्रॉपरली अपलोड हुआ है कि नहीं, उनके ट्राई बैलेंस निकालेगा प्रॉपरली, उसको एक दिन जाएंगे लाइक 28 तक। बट 28 तक मैंने डेटा अपलोड किया, सब कुछ किया, बट हैव द बिजनेस स्टॉप, बिजनेस स्टॉप हुआ है क्या आपके हिसाब से, ये 3 दिन में, ये 3 दिन में भी तो कुछ तो डेटा बना रहेगा, राइट। हेलो। Yes. Yes. राइट, मतलब 25 से 30, 28 तक मैंने क्या किया, मैंने लीगेसी डेटा अपलोड किया, बट उस पीरियड ऑफ टाइम में भी मेरा बिजनेस रन हुआ है। मेरे 10 सेल ऑर्डर बनी होगी, मेरे 15 परचेस ऑर्डर बनी होगी, मेरा बिजनेस तो स्टॉप नहीं हुआ है, कैन स्टॉप बिजनेस फॉर एसएपी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द कटोवर डेटा। तो कटोवर डेटा क्या करते हैं, लीगेसी डेटा अपलोड होने के बाद एक ब्लैकआउट पीरियड रखते हैं। ब्लैकआउट पीरियड मतलब क्या, ब्लैकआउट पीरियड मतलब हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस स्टॉपेज। मतलब हम लोग बोलते हैं कि गो लाइव जाने से पहले किसी भी बिजनेस को हम लोग बोलते हैं 2-3 दिन आपका बिजनेस स्टॉप करो। उसके हम लोग, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी कटोर डेटा रहता है, यानी कि जो ये 3 दिन में जो भी डेटा बना, जब मैं लीगेसी डेटा अपलोड कर रहा था, राइट, मतलब कट ओवर यानी कि क्या, आई हैव कटेड माई बिजनेस, और मतलब मैंने बिजनेस स्टॉप किया है, ओके, कट ओवर करके, और मैंने वही चीजें अपलोड कर दी है ब्लैकआउट पीरियड में।
That is called as a यश cutover data. गाडीची चाबी ठेवता तुम्ही ते पप्पा भी Understood? समझ में आ रहा है आपको ये? Yes. हाँ मतलब मैंने बिजनेस स्टॉप किया 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, ब्लैकआउट पीरियड रखा, लीगेसी डेटा होने के बाद और कटओवर डेटा अपलोड किया। फिर अभी मैं 1 तारीख को 1 जैन को मतलब फॉर एग्जांपल 29-30 कटओवर डेटा का हम लोग डेटा पकड़ लेते हैं 29 30-31 ब्लैकआउट पीरियड बराबर। तो मैंने क्या किया, जो कटओवर डेटा ये 4 दिन में बना वो मैंने 30-31 को अपलोड कर दिया, ट्राई बैलेंस मैच कर दिया और 1 जन से मैंने क्या कर दिया, गो लाइव, मतलब मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन एसएपी में मेरा गो लाइव हो गया। ओके, सो these आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटा इन एसएपी। ओके, इसको आप मैं चैट में डाल रहा हूँ, आप कहीं पे तो सेव करके लो। ओके, ये भी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। ओके, यहां तक कुछ डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस? हेलो, यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, राइट? हाँ, नहीं, नो डाउट, मेरे को ये थोड़ा समझना पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा समझना मतलब ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अभी भी आप सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया लो, आगे जाके हम लोग जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इम्प्लीमेंटेशन का ये लेंगे, सेशन लेंगे, राइट? तो लाइक कि मेरे इम्प्लीमेंटेशन हुए तो उसका व्हाट आर द फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हमें क्या करना है इम्प्लीमेंटेशन में जाके, राइट? एक्चुअली हम लोग एसएपी तो सीख लिया, कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, बट अभी करना क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट का रोल क्या रहता है, तो तभी आप ये सब चीजें, और या फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्सपोजर दूंगा मैं, राइट? तो सपोर्ट का एक्सपोजर अलग से दूंगा, इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपोजर दूंगा, तो उस तभी मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। अभी आपको ओवरऑल आइडिया लेना है ताकि आप प्रिपेयर हो सको उस माइंडसेट में, और तब आपकी रियलिस्टिक एग्जांपल लो। लाइक चलो कि मैंने बिजनेस स्टॉप नहीं किया, मैंने कटोर दिया लेकिन एक बिजनेस स्टॉप नहीं किया, फिर भी मेरे को इमरजेंसी में कहीं ना कहीं तो कोई साइड पे मटेरियल लगा, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं स्टॉप ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसे भी सिनारियोज हो सकते हैं ना, आप वो रियलिस्टिक एग्जांपल के बारे में सोच पाओगे, अलग अलग एग्जाम्पल, उसमें हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया, एसएपी ने क्या सॉल्यूशन दिया या क्या स्टेप्स किए, दैट विल हेल्प यू व्हेन यू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द फ्यूचर। ओके, तो अभी आप ओके, एक ओवरऑल अभी से समझ, बैकएंड में एक आइडिया ले लोगे, समझ पाओगे, तो आप आगे जाके उसको कोप कर पाओगे और ज्यादा उसका अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। ओके, आई थिंक ओके, वी कैन वाइंड इट अप फॉर टुडे। ओके, या फिर इवनिंग में ओके, आपको बताता हूँ वी कैन कनेक्ट और नॉट। ओके, चलेगा। ओके, सो अभी तक हम लोग ने जो कवर्ड अप किया उसको थोड़ा सा रीड करो। ओके, मैंने दो तीन होमवर्क दिए, लाइक ओके, वो जैसे कि हमको आगे पढ़ना है, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज, गोल्डन रूल्स, ओके, एसेट हाँ, लायबिलिटी क्या है, वो सब चीजें, थोड़ा सा फिनेंस के एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। ओके, यस, यस, राइसेप के बारे में पढ़ो और बाय हार्ट कर लो राइसेप। राइसेप का फुल फॉर्म क्या है ये पूरा बाय हार्ट करो, एवरी क्वेश्चन एवरी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओके, ओके, और टाइप्स ऑफ डेटा, ओके, यस, या सो वी कैन वाइंड इट अप फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस, यस, बाय। inside